Hello everyone, this is again me Vipin Singh and today's topic is inverse of matrix. Okay, so without wasting our time, we will start our topic, that is inverse trigonometry. Inverse of matrix. Sorry. So inverse of matrix. Okay. So we were talking about the inverse of matrix. So some things about the matrix, the operation which I have told you, say if A and B are two matrices, then we can do the addition of these matrices, subtraction of these matrices, multiplication of these matrices, okay? And the last term which you will obviously say the division. So addition we have done, subtraction we have done, multiplication we have done, but now the term is A divided by B, means if A and B are the two matrices, two square matrices, then we have to find the division. So in the case of the division, what we will do, like we can write it like A divided by B, or we can write it like A multiplied by B inverse. So here what we are talking about inverse. So sometimes we can also say that the inverse of a matrix can be work as in the division of any matrix, है ना? And so this one is the basic need of the inverse, and this inverse in the form of the application is very important when we will find the simultaneous equations. Okay? When we will solve the simultaneous equation, then this inverse is very important, plays a very important role. So inverse of matrix has two parts basically in the two methods. So first one is the elementary, another one elementary operations you can say, and another one is by formula. By formula you can find out, or by elementary operations you can find out. So if we are talking about elementary operations, ठीक है. So what is elementary operations? Elementary operations के लिए like for example, if you are having this matrix A having the element 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so this one is your column 1, column 2 and column 3, as you all know, and this one is your row 1, row 2 and row 3. ठीक है. So first is your elementary operation is what? Interchange of any rows या columns. ठीक है. तो interchange of any rows and columns. So देखिए आप क्या कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल R1 इंटरचेंज बाय R2, ये अगर आपने लिखा है ना. अभी हम सिर्फ एक ऑपरेशन की बात करेंगे, पहले ऑपरेशन की बात करेंगे, दैट इज इंटरचेंज ऑफ एनी रोज एंड कॉलम. ये आपका इंटरचेंज का साइन होता है, ये भी R1 या R2. तो उसने क्या बोला, इस ऑपरेशन से आपको क्या पता चल रहा है कि आप R1 को R2 में और R2 को R1 में कन्वर्ट कर दो. तो ये जो आपके पास एलिमेंट्स गिवन हैं, इसमें अगर आप ये ऑपरेशन अप्लाई करोगे, सो दिस कंप्लीट रो R2 विल कन्वर्ट इनटू द R1 एंड दिस R1 विल कन्वर्ट इनटू द R2. सो यू विल हैव 4 5 6 1 2 3 7 8 9, है ना. So what you did, you just transform or interchange the rows by R1 interchange R2. So this one is your first operation. Hopefully ये clear हुआ हो, ज़्यादा कुछ नहीं है. Same you can do in the column. कॉलम में भी आप अगर फॉर एग्जांपल C2 और C3 को चेंज कर रहे हो, मैं अभी इस वाली मैट्रिक्स में अप्लाई कर रहा हूँ, इसमें नहीं, ये तो आपकी चेंज होगी, मैं इसमें अप्लाई करके बता रहा हूँ. तो अगर आप C2 C3 को चेंज कर रहे हो तो आपके पास क्या आ जाएगी नई मैट्रिक्स. दिस वन इज योर C2, दिस वन इज योर C3. C1 विल रिमेन सेम 1 4 7. C2 को C1 में और C2 को C3 में और C3 को C2 में कन्वर्ट कर दो, मतलब इस वाले एलिमेंट्स को इधर और इस वाले एलिमेंट्स को इधर. सो इट विल बी 3 6 9 2 5 8, है ना. तो आपने क्या करा, C1 और C2 और C3 को इंटरचेंज कर दिया. दिस साइन रिप्रेजेंट द इंटरचेंज. तो आप कौन सा ऑपरेशन पढ़ लेते हैं अभी, इंटरचेंज ऑफ रोज और कॉलम. तो होपफुली क्लियर हुआ. इंटरचेंज में कुछ नहीं करना है, कोई भी दो मैट्रिसेस या कोई भी दो रोज को, सॉरी कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स को आप इंटरचेंज कर सकते हैं. ठीक है. फाइन. सो सेकंड देखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन.
सेकेंड है आपका द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स बाय अ रोज और कॉलम बाय अ नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेकेंड ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो या कॉलम बाय एनी नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर से किसी भी रो किसी भी कॉलम की मल्टीप्लाई करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। दिस वन इज योर C2 C1 C2 C3 R1 R2 R3। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस ऑपरेशन को लिखोगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि आपको C2 में 3 से मल्टीप्लाई करानी है, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग कि आपको C2 में कॉलम 2 में मल्टीप्लाई करवानी है, किससे 3 से मल्टीप्लाई करानी है। तो आप इसको राइट कैसे करोगे। आप अभी किस में चेंज कर रहे हो, सिर्फ C2 का नाम लिया है हमने, सिर्फ आपने C2 का नाम लिया कि आपको C2 में चेंज कराना है। तो C2 में चेंज कराना है तो C2 को आपने किस साइड लिखा, अपने लेफ्ट साइड में लिखा, क्योंकि आप C2 में चेंज करा रहे हो। क्या चेंज करा रहे हो, आप उसे मल्टीप्लाई करा रहे हो 3 से, आप उसे मल्टीप्लाई करा रहे हो 3 से। सो जिस में चेंज कराना है, अगेन आई एम सेइंग कि जिस में चेंज करा रहे हो उसको आप लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे। जिस जो चेंज कर रहे हो, जैसे कि आप 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो पूरे कॉलम में, तो उसको आप राइट हैंड साइड में लिखोगे, ठीक है। अगेन देखो क्या आपके पास आएगा, क्योंकि आपने C2 में चेंज करा तो C1 C3 में तो कोई चेंज नहीं है, उसको तो आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, ये तो एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। सो व्हाट यू विल हैव 1 4 7 3 6 9, ये तो एज इट इज आ गया क्योंकि आपने इसमें कोई चेंज ही नहीं करा। C2 में चेंज करा है, क्या चेंज करा है, 3 से मल्टीप्लाई कराइए, तो C2 में 3 से मल्टीप्लाई करा दो, 3 into 2 3 into 5 and 3 into 8, you will have what 1 6 3 4 15 6 और 7 24 9, ठीक है। तो ये आपका सिंपल हो गया। तो इसमें आप अगर मल्टीप्लाई, अब आप पूछोगे इससे डिवीजन भी करा सकते हैं क्या, तो हाँ आप डिवीजन भी करा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप C3 में करा रहे हो, क्या करा रहे हो, C3 डिवाइडेड बाय 3, आपने 3 लिख दिया, C3 डिवाइडेड बाय 3, तो आप किस में चेंज कर रहे हो इस बार, C3 में कर रहे हो। तो A को A मैट्रिक्स है, दोनों C1 और C2 तो आपके एज इट इज रहेंगे क्योंकि आपने इसमें कोई चेंज ही नहीं करा है, तो ये तो ऐसे कैसे नोट डाउन हो गए। अब आपने इसमें चेंज करा है C3 में, क्या चेंज करा है आपने कि C3 को 3 से डिवाइड करा दिया, तो 3 डिवाइडेड बाय 3 6 डिवाइडेड बाय 3 9 डिवाइडेड बाय 3। नाउ व्हाट यू विल हैव 1 6 1 4 15 2 एंड 7 27, सिंपल, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करा सकते हो, ठीक है। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, जैसे आपने ये लिखा, और आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1/3 into C3, सिंपल है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर यहाँ पे आपने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन लिखा है, डिवीजन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। सो ये हो गया आपका सेकंड ऑपरेशन, होपफुली क्लियर हुआ हो। नाउ थर्ड ऑपरेशन की बात करते हैं। ऑपरेशन थर्ड की बात करें, the addition to the element of any rows या column the corresponding element of any other row or column by multiplying by any non-zero term, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि एडिशन ऑफ एनी रो या कॉलम by another row or column by multiplying, यहाँ पे 2 लिखो, by multiplying any non-zero real number। मे बी राइटिंग थोड़ा सा सही नहीं आ रहा हो, बट समझने की कोशिश करो। सो फॉर एग्जाम्पल अगेन हम लोग वही मैट्रिक्स लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, ठीक है।
वही आपके रोज कॉलम्स आ गए। अब आप क्या कर रहे हो, देखो इसमें ना क्या कह रहा है वो, पहले क्वेश्चन को आप सॉरी स्टेटमेंट को आप समझोगे। एडिशन ऑफ एनी रो या कॉलम टू अनदर रो या कॉलम बाय मल्टीप्लाइंग एनी नॉन जीरो नंबर। ठीक है, तो आपने क्या करा कि फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ R1 में आपको चेंज करना है, R1 में चेंज कर दो। ठीक है, अब भाई देखो कोई भी आप दो रोज को या कोई भी दो कॉलम्स को ऐड करोगे तो कोई नई रो या नए कॉलम तो बनाओगे नहीं, किसी एक एग्जिस्टिंग वाले में ही आप ऐड कर रहे होगे। समझ में आ रही है बात? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं R1 और R2 को ऐड कर रहा हूँ, तो किस में ऐड कर रहा हूँ, या तो मैं R1 में ऐड करूंगा या R2 में ऐड करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने R1 R2 को ऐड करके एक नई रो बना दी R4, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप R1 या R2 को ऐड करोगे दोनों में से किसी एक रो में, या R1 में ऐड कर रहे हो या R2 में ऐड कर रहे हो। तो R1 में आप चेंज कर रहे हो, क्या चेंज कर रहे हो कि आप R1 में ऐड कर रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो, R2। ये भी एक ऑपरेशन हो सकता है सिंपल कि R1 में आपने R1 प्लस R2 कर दिया, दोनों रोज को ऐड अप कर दिया। ठीक, तो पहले मैं एक बार इसका बता दूं ये कैसे हो जाएगा। फिर इसमें आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी R1 में R1 प्लस R2 अगर आपने ऐड कर दिया तो। अब देखो R1 में कर रहे हो तो R1 में आप डिस्टर्ब करोगे बस, और बाकी के एलिमेंट्स एज इट इज आ जाएंगे। तो आप एज इट इज इन वाले एलिमेंट्स को लिख लो पहले। अब आपने R1 में चेंज करा है क्या, इन दोनों को प्लस, तो 1 प्लस 4, ये क्या हो गया 2 प्लस 5, और ये क्या हो गया 3 प्लस 6। सो दिस वन विल बी 5, दिस वन विल बी 7 एंड दिस वन विल बी 9। तो आपकी मैट्रिक्स क्या बन गई 5 7 9 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये आपके नए एलिमेंट बन गए। तो ये एक हो सकता है कि R1 प्लस R2 आप कर लो, या फिर ये भी हो सकता है, अब ये हमारा ये हो सकता है कि बाय मल्टीप्लाइंग एनी अदर नॉन जीरो नंबर। इस वाली बात का मतलब क्या है कि आपको R1 में ऐड करना है R2। ठीक है, अब R2 ऐड कर रहे हो, कोई सा भी नॉन जीरो नंबर हो सकता है, फॉर एग्जांपल k, कोई सा भी नॉन जीरो नंबर है। अब आप k की जगह पे कुछ भी रख लो, 1 2 3 4 5 6 या -1 -2 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो से k इज योर एनी नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। अब देखो क्या आएगा अगर मैं ये वाला ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई करूँ तो। अगेन हम लोग R2 R3 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, सो वी विल कॉपी इट and we are doing changes in only R1. So what we will have 1 plus 4k, क्योंकि आपने क्या करा k से मल्टीप्लाई करा दी, 4k, 2 plus 5k, 3 plus 6k। अंडरस्टूड? तो हमने क्या करा इसमें, आपने क्या करा R1 में चेंज करा, और R1 में क्या चेंज करा आपने, R1 में ऐड करा है k R2। R1 में आपने ऐड करा है ये वाला, और जब आपने R2 को क्या करा k से मल्टीप्लाई करा, तो k से मल्टीप्लाई करा के इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे 4k 5k 6k, और फिर आप इसको इसमें ऐड कर रहे हो, ऐड करने के बाद आपके पास ये एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो तीनों ऑपरेशंस हो गए क्लियर। नाउ अब आप कहोगे कि ये तीनों ऑपरेशंस हमने पढ़ लिया, हम लोग R1 में ऐड कर रहे हैं, R1 में सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको इंटरचेंज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट ये कर क्यों रहे हैं। नाउ करने का मेन पर्पस क्या है कि हम लोगों को पढ़ना क्या है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हमें इनवर्स निकालने के लिए, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, सो वी विल डूइंग दिस, है ना, वी आर डूइंग दिस। सो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, देखिए आपके पास कोई एक नंबर है 25 और आपने उसको मल्टीप्लाई करा दिया 1/25 से, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 1। बहुत नॉर्मल जनरल सी बात है। या फिर आपने क्या करा 25 को मल्टीप्लाई करा दिया 25 के इनवर्स से, तो आपके पास क्या आ गया 1 आ गया, है ना, बोल सकते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर लगना है। ठीक है, क्या कि जैसे कि आपके पास से A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, so if A multiply and B is also your any square matrix, if A into B is your I is referred as always 1, I always referred as 1 in case of matrix। मैट्रिक्स में जहाँ 1 यूज होना होगा हमें, मतलब मैट्रिक्स की फॉर्म में जहाँ 1 यूज होना होगा, हम वहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा देंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर नंबर ऑफ A B, है ना। फॉर एग्जाम्पल इसका ऑर्डर n है, इसका ऑर्डर n है, तो इसका भी ऑर्डर n होगा। ठीक, अगर A आपकी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और B भी आपकी कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, और उससे मल्टीप्लाई करके आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, तो ऑब्वियसली B विल बी योर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A।
गॉट इट? क्या बोला मैंने कि B विल बी योर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मतलब हमने कोई प्रूफ नहीं करा, कुछ नहीं करा, बट हमने डायरेक्टली बोल दिया कि A की मल्टीप्लाई B से करें, I आ गया। अब यहाँ पर B हमने बोल दिया इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ एक बार हम लोग देख लेंगे, छोटा सा प्रूफ है, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, है ना, जनरल देख लेंगे कैसे कैसे करना है। अभी आपने क्या पढ़ा, A B इज इक्वल्स टू I, तो आपको शो करना है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई क्वेश्चन नहीं है, टू शो B इज इनवर्स ऑफ A, है ना, B इज इनवर्स ऑफ A, और वी कैन से B इज इक्वल्स टू A इनवर्स। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक, ये आपको प्रूफ करना है। तो अभी आपको पता है, देखो ये दे रखा है, अगर आप मल्टीप्लाई करा दो, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स बोथ साइड, करा सकते हो ना। आपने क्या करा, A इनवर्स की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दी, तो A इनवर्स इंटू A इंटू B इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू I। तो A इनवर्स इंटू A कितना हो जाएगा बताओ, जनरल सी बात है ये, तो A इनवर्स इंटू A ऑब्वियसली I ही होगा, है ना, I होगा या 1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको 1 की जगह आप I लिख लो, क्योंकि हम लोग I मैट्रिसेस की बात लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, I भी यहाँ पे क्या है आपका A इनवर्स इंटू I, या फिर जब आपका I और I दोनों ही 1 हो जाएगा तो B इज इक्वल्स टू A इनवर्स। तो अब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि B हमेशा क्या होगा, इनवर्स ऑफ A। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आपके पास कोई दो मैट्रिक्स हैं और उन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, जिसमें से A आपकी कोई मैट्रिक्स गिवन है, तो B ऑब्वियसली विल बी द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। B आपका क्या होगा, मैट्रिक्स A का इनवर्स होगा, ठीक है। नाउ आप इनवर्स फाइंड आउट कैसे करोगे, उसके स्टेप्स क्या होंगे, है ना, वो देखते हैं। आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है, से A इज गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, A आपकी कोई गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, और आपने अज्यूम कर लिया कि अभी आपने पढ़ा था क्या है आपका कि A इनवर्स इज इक्वल्स टू योर D, तो A इज इक्वल्स टू A इंटू I लिख सकते हो आप इसको, है ना, A इज इक्वल्स टू A इंटू I लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि भाई I आपका रिफर्ड होता है 1 की तरह, तो जब आप किसी भी 1 की A से मल्टीप्लाई कराओगे तो A तो आ जाएगा, है ना, तो आप इसको लिख सकते हो A इज इक्वल्स टू A इंटू I, ठीक, आपने ये लिख दिया। अब आपने क्या करा, आपको क्या करना है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपको क्या करना है, इस A को कन्वर्ट करना है I में, और जो जो ऑपरेशंस आप इसमें A में अप्लाई करोगे वही वही ऑपरेशंस आपको इस I में अप्लाई करने हैं, ठीक है। A को कन्वर्ट करना है I में, आपका मेन जो आपके वो रहना चाहिए मोटो कि आपको इस A को I बनाना है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है, कितने ऑर्डर की है, 3 ऑर्डर की है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है इसमें, ठीक है। तो ये आपका बेसिक मोटो होना चाहिए कि आपको इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। आप कैसे करोगे कन्वर्ट, कैसे करोगे कि आप या तो इसकी हेल्प से इसको 0 बनाओगे या जो भी करोगे, मतलब बाय यूजिंग, कैसे कन्वर्ट करोगे, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, यहाँ इनका रोल प्ले होगा, ठीक है। जो जो एलिमेंट्री आप ऑपरेशंस इसमें लगा रहे हो वही वही एलिमेंट्री ऑपरेशन आप I में लगाओगे। जब आप I में वही ऑपरेशंस लगाओगे, A आपका एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर I आ गया, यहाँ पर A आ गया, तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या आएगा भाई, A की मल्टीप्लाई किससे कराएं कि 1 आ जाए, या फिर सुनो ना 2 की मल्टीप्लाई किससे कराएं कि 1 आ जाए, ऑब्वियसली आप बोलोगे सर 1/2 से, या फिर आप बोलोगे कि सर 2 इनवर्स से करा दो, तो ये I में भी जो आपके चेंजेस होंगे वो क्या बन जाएगा, आपका A इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपको क्या करना है, A इज इक्वल्स टू AI, A आपको कुछ नहीं करना, मैट्रिक्स लिखना ही नहीं है, बस उसकी जगह A लिखना है, दैट्स इट। उसके बाद आपको A को कन्वर्ट करना है I में,
जब आप ए को आई में कन्वर्ट कैसे करोगे, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस आप ए को आई में कन्वर्ट करोगे। जो ऑपरेशंस आप ए में अप्लाई कर रहे हो वही ऑपरेशंस आप आई में अप्लाई करोगे, और आई से आपको क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स। अब आप पूछोगे सर हम ए में क्यों अप्लाई नहीं कर रहे, अगर आपने ए में भी अप्लाई करा तो यहाँ पर ए इनवर्स में कुछ और ही आ जाएगा, है ना, और जब कुछ और आ जाएगा तो यहाँ पर आई आने का मतलब ही नहीं बनता, तो सब कुछ हौच पौच हो जाएगा। इसलिए आप क्या करोगे, सिर्फ ए के ऑपरेशंस आई में अप्लाई करोगे और आई के बाद उसका ए इनवर्स आपके पास आ जाएगा। मेन बस ये दो स्टेटमेंट आपको याद रखना, इन दी एंड यू विल हैव दिस, इन दी स्टार्टिंग यू विल हैव दिस, और इन बिटवीन आपको करना है इन ऑपरेशंस के यूज करके ए को आई में कन्वर्ट करना है। जो ऑपरेशंस ए में अप्लाई करोगे वही ऑपरेशन आई में अप्लाई करना है। एक क्वेश्चन करके बताएंगे अभी, ठीक है। नाउ अब देखते हैं कुछ इसके बेसिक स्टेप्स कि आप इनवर्स को कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे आपको एलिमेंट्री आई के फॉर्म में आपको एक गिवन मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आपके पास ये रही एक मैट्रिक्स ए, ठीक, एक सेकेंड में देख लूंगा वीडियो सही है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर मैट्रिक्स ए, है ना, और इसके एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये इसके एलिमेंट है। तो ये एक मैट्रिक्स है ए, और आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है, वही अभी मैंने बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऑर्डर कितना रहेगा, वही 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको गिवन है उसी ऑर्डर में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में उसको कन्वर्ट करना है। तो स्टेप वन इज व्हाट, जो आपका ये वाला जो आपका लेफ्ट टॉप मोस्ट एलिमेंट है ना, उस एलिमेंट को आपको 1 में कन्वर्ट करना है, ठीक। टू कन्वर्ट इसको अगर मैं नेम दे सकूं तो ये इसका नेम रहेगा 1 1 रो 1 कॉलम 1, है ना। एड्रेस तो हम ऐसे बताते हैं एलिमेंट का। टू कन्वर्ट ए 1 1 और ए, या फिर इसको ऐसे भी लिख लो, दैट इज ए हियर, है ना, इनटू 1 बाय यूजिंग रोज एंड अनदर रोज, बाय यूजिंग अनदर रो या कॉलम, ठीक है। तो आपको इसको 1 बनाना है। स्टेप टू क्या करना है, इसी 1 का यूज करके आपको D और G को 0 बनाना है। आपको अभी इधर नहीं जाना, कॉलम वाइज आप चलोगे, ठीक है। कॉलम वाइज चलोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ कॉलम के ऑपरेशंस लगाओगे, आप कॉलम वाइज चलोगे कि पहले आपने ये वाला एलिमेंट 1 बनाया, अब इस 1 को बनाने के बाद अब देखो यहाँ पर दोनों 0 हैं तो इन दोनों को 0 बनाया, ठीक है। मेक D and G 0 by using A is equals to 1, है ना। तो जब आपने A को 1 बना लिया है, A को आपने 1 बना लिया है, तो अब आपको इस 1 की हेल्प से D और G को 0 बनाओगे। कैसे बनाओगे अभी हम एग्जाम्पल क्वेश्चन करके बताएंगे ना। स्टेप 3 क्या कि अब आप B को 1 बनाओगे या E को 1 बनाओगे, सोचो। देखो यहां से आप थोड़ा कोरिलेट करो, E के प्लेस पर है ना 1, तो आप E को 1 बनाओगे। तो नाउ your third step will be to convert E, या फिर अगर मैं इसका एलिमेंट का एड्रेस दूं तो क्या हो जाएगा, या फिर क्या हो गया, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, दैट इज E into 1 by using another row या कॉलम, ठीक है। तो आपको इस E को 1 बनाना है और फिर इस E को 1 बना सकते हो आप किसी भी रो और कॉलम की हेल्प से। स्टेप 4, अब आपको क्या करना है, ये तो 1 बन गया, अब इस 1 की हेल्प से B और H को 0 बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मेक B and H 0 by using E is equals to 1। अब क्योंकि आपको ये E 1 बन गया तो अब इस E की हेल्प से B और H को आप 0 बना दोगे। नाउ स्टेप 5 में आपको क्या करना है, यहाँ पर थर्ड कॉलम में आ जाओ। थर्ड कॉलम में 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, I की जगह पर 1 है। तो आपको क्या करना है, कन्वर्ट
क्या हो जाएगा ये A33 दैट इज I इंटू 1, बट यहां आई इसकी मेन लाइन दैट इज विदाउट यूजिंग एनी रो और कॉलम। आपको इसे 1 बनाना है बट बिना किसी रो और कॉलम के मदद के, बिना किसी रो और कॉलम के मदद के बनाना है। मतलब आपके पास अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 आ गया, ठीक है, तो आपको 2 को 1 कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, या फिर आपके पास 1/11 आ गया यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, इसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे लेकिन किसी दूसरी रो और किसी दूसरे कॉलम की हेल्प नहीं लोगे। किसी स्केलर नंबर से किसी नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड तो करा सकते हो बट किसी रो और कॉलम को ऐड नहीं करवा सकते। कौन से वाले एलिमेंट के केस में, इस वाले लास्ट वाले एलिमेंट के केस में। अब जब आप I 1 बन गया तो अब क्या करना है आपको, इस 1 की हेल्प से C और F को 0 बनाना है। स्टेप 6 इज मेक C एंड F 0 बाय यूजिंग I इक्वल्स टू 1, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका सारा हो गया जो आपके ऑपरेशन है। पॉज द वीडियो बिफोर यू नोट इट डाउन, ओके फाइन। सो ये थे आपके इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के ऑपरेशंस। नाउ वी विल टेक अ क्वेश्चन। हाँ, so let's take a question, exercise of exercise 3.5 I guess, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, इजी है थोड़ा, इसमें इन्वर्स फीचर भी नहीं है। तो 2 का आप अगर थर्ड पार्ट ले लेते हैं, 2 के थर्ड पार्ट में आपका एक मैट्रिक्स दे रखा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ दे एग्जिस्ट। अच्छा, दे एग्जिस्ट का मतलब भी अभी मैं आपको बता दूंगा क्या है इसका मतलब, by using the elementary operation, elementary operations के यूज से। let A is equals to 3, 10, 2, 7, ठीक है। तो ये आपकी मैट्रिक्स थी। तो आपको क्या करना है पहले ही, क्योंकि since A is equals to I A लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर AI भी लिख सकते हो, ठीक है। I A लिख सकते हो ना। I क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो A की मल्टीप्लाई, अगेन मैं बोल रहा हूँ, A से कराओगे आप, A की मल्टीप्लाई I A से कराओगे, ये तो आपकी प्रॉपर्टी भी थी पहले आपने पढ़ रखी है। 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो A आपकी क्या है, 3, 10, 2, 7, तो इसका ऑर्डर क्या है 2। तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओगे, वो भी कितने ऑर्डर की होगी, 2 ऑर्डर की होगी। A विल एज इट इज कॉपी। ना आपको क्या करना है, अब आपको इस वाले मैट्रिक्स को, इस A को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, और जो जो ऑपरेशंस आप इसमें अप्लाई करोगे वही ऑपरेशन इसमें अप्लाई करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इस A को आपको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और जो ऑपरेशंस आप इसमें अप्लाई करोगे वही ऑपरेशंस आप इसमें अप्लाई करोगे। देखो आपको पहले इस 3 को 1 बनाना है, ठीक है। तो इस 3 को 1 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस 3 को 1 बनाने के लिए आप पूरी रो को R1 में आप चेंज करो तो R1 डिवाइडेड बाय 3 कर सकते हो। R1 को अगर आप पूरी रो को आप क्या कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, तो ये आप कर सकते हो, है ना। एक सेकेंड में वीडियो चेक कर लूँ सही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, इसे R1 को कन्वर्ट कर, R1 को डिवाइड कर दोगे 3 से, सो व्हाट यू विल हैव 1, 10 डिवाइडेड बाय 3, 2, 7, क्योंकि आपने R2 में तो कोई चेंज करा ही नहीं, तो बड़ा हो गया। तो R2 में आपने कोई चेंज करा नहीं, तो इसको तो ऐसे ही लिख दो, जहाँ जहाँ R2 है जिसकी भी जो मैट्रिक्स में, उसको ऐसे ही लिख दिया। अब R1 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 डिवाइडेड बाय 1, और फिर दिस विल बी 10 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3, और दिस वन विल बी योर 0। नाउ अब आपको क्या करना है, इस 2 को 0 बनाना है। जब 1 बन जाएगा तो 0 बहुत इजीली बन जाता है। कैसे बनता है, देखो ये R2 है, R2 में चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, R2 माइनस 2R1। ये वाली बात आई समझ में, ये वाली बात आई समझ में। क्या करा आपने, जब भी आपका 1 बन जाएगा, अगर आपके पास एक बार 1 आ गया तो आप बाकी एलिमेंट को बहुत इजीली 0 बना दोगे।
उस एलिमेंट को उतने से मल्टीप्लाई कराओ जिसको 0 बनाना है। जैसे आपको 2 को 0 बनाना है तो आपने 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराया और फिर उसमें से माइनस कर दो, इजीली 0 बन गया। कैसे बनेगा देखो 1, अब आपने R1 में कोई चेंज नहीं करा तो R1 आपकी एज इट इज कॉपी हो जाएगी हर जगह, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 और फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2 माइनस, है ना, 7 माइनस 2 10 जा 20/3 0 माइनस, अब 2 की आपने 1/3 से कराई तो 2/3, 1 माइनस 0 की 2 से कराई 0, ठीक। तो ये आपके एलिमेंट आ गए। देखो क्या क्या हुआ आपके पास, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 10/3 और ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 21 1/3 अगेन, और ये हो गया आपका कितना 1/3, ये कितना हो गया 0, ये हो गया माइनस के 2/3, ये कितना हो गया 1, और यहाँ पे आपका क्या चल रहा है a। नाउ अब वो आपको क्या करना है, अब आपको इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है, ये वाला एलिमेंट जो है, ठीक। इसको 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, R2 को, अब देखो यहाँ पर आप किसी और की हेल्प नहीं ले सकते हो, यहाँ पर जो है वैसे ही आप उसको 1 बनाओगे। तो R2 में आपको 1 बनाना है, तो R2 मल्टीप्लाई बाय 3, R2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो आपका एज इट इज आ जाएगा। R1 में तो कोई चेंज नहीं करा रहे हो आप, तो क्या हो जाएगा ये आपका 0, 3 से मल्टीप्लाई करा आपका ये 1 बन गया, ये बन गया -2 और ये क्या बन गया अगेन 3 ना। उसके बाद आपको क्या कराना है, इस 1 की मल्टीप्लाई करानी है 10/3 से और माइनस करा देना है इसमें, मतलब R1 माइनस 10/3 मल्टीप्लाई बाय R2। देखो अगेन आई एम सेइंग कि जब आपका 1 बन गया तो आपको इसे 0 बनाने के लिए बहुत इजीली आप इसको 0 बना सकते हो। जो प्रोसीजर मैंने बताया आप उसी प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो आपके कहीं भी दूसरे वाले एलिमेंट डिस्टर्ब नहीं होंगे, है ना। तो R1 को आपको देखो 0 बनाना है तो कैसे बनाओगे, आपको यहाँ पे 10/3 दिख गया, यहाँ पे 1 दिख गया, तो 1 की मल्टीप्लाई 10/3 से करा दे तो 10/3 हो गया। जब 10/3 की 10/3 से माइनस करोगे तो 0 बन जाएगा। लेकिन बाकी सब में क्या क्या चेंजेस होंगे देखो, अब क्योंकि R1 में चेंज कर रहे हो ना, R2 तो सेम है तो R2 को तो ऐसे ही रहने दो। अब R1 में चेंज कर रहे हो, क्या मल्टीप्लाई करा रहे हो 10/3 से, R1 का फर्स्ट एलिमेंट माइनस मल्टीप्लाई करा है 10/3 से R2 को, तो R2 का ये वाला एलिमेंट क्या है 0, इसको 10/3 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो 0। R1 कितना है 10/3 माइनस कराया R2 के 10/3 वाले मल्टीप्लिकेशन, तो 10/3। यहाँ पर आ जाओ 1/3 माइनस और फिर आप क्या कर रहे हो 10/3 इंटू 2R2, 10/3 इंटू -2 और 0 माइनस, सॉरी थोड़ा हौच हो रहा है, बार लिख देते हैं इसको, ना, क्योंकि यही लाइन इसकी थोड़ी मेन है और ये मैं नहीं चाहता आप लोग थोड़ा सही से ही आए समझ में। देखो अगेन मैं एक और बात बता देता हूँ, R2 के एलिमेंट तो आपके ऐसे हैं एज इट इज, ठीक है। R1 के एलिमेंट भी आप ऐसे ही लिख लो पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो आपको करना क्या है, माइनस लगा हुआ है, माइनस आपने सबके बाद में लगा दिया, ठीक। 10/3 की मल्टीप्लाई R2 से, आपने 10/3 की मल्टीप्लाई R2, 10/3 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 10/3 की मल्टीप्लाई 1 से 10/3, 10/3 की मल्टीप्लाई -2 से -20/3, तो माइनस माइनस प्लस, 10/3 की मल्टीप्लाई 3 से कितना हो जाएगा 10 और फिर माइनस के 10, ये कितना हो गया आपका 1, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 1, यहाँ पर कितना आ गया 21/3 इज इक्वल्स टू 7, है ना। और ये कितना हो गया -10, ये कितना हो गया -2 और ये कितना हो गया -3 और ये क्या आ गया 5, ठीक। तो ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर। अब आपको कैसे लिखना है, यहाँ तक तो आपको आ गया होगा समझ में, यहाँ तक तो आपको आ गया होगा समझ में। अब आपको करना क्या है, अब आपको यही वाली चीज मैंने यहाँ पर लिख दी वाली लाइन 1001 इज इक्वल्स टू
7 -10 -2 3 8। तो ये क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या है ए, तो ऑब्वियसली ये क्या हुआ आपका ए इनवर्स, तो ए इनवर्स क्या है आपका ये मतलब ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 7 -2 -10। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ आपको ऑर्डर 2 का बताया। ठीक है, ऑर्डर 2 वाला मैंने बताया कि ऑर्डर 2 में आपको कैसे इंप्लीमेंट करने हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ऑर्डर 2 के बाद ऑर्डर 2 के आपके पास 6 क्वेश्चन हैं आई थिंक, तो आप 6 क्वेश्चन इसमें अप्लाई करोगे और मेरे को बताओगे कितना आपको समझ में आया और कितना नहीं आया। ओके, थैंक यू।